Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 3 science, that is water, weather and season. You know what is water, weather and season? Water is the most essential thing that we need in our life, in day-to-day life. We need water for digestion of our food. We need water for hydrating our body. And you know what are weather? What is weather? Weather can change within a second, within a minute or within an hour. अभी ठंड थी, then it starts raining, कुछ भी हो सकता है. So when you know what is season? The season changes in 3 to 4 months in a year. There are many seasons like winter season, autumn season, summer season, rainy season. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will study about water. What is water? Water क्या होता है? Water कैसे मिलता है हमें? Second, water cycle. What is water cycle? Third, water pollution. Fourth one is weather. Fifth one is factors affecting weather. क्या क्या factors affect करते हैं हमारे weather को? Sixth one is weather affects our life. How weather affects our life? Next is weather forecasting, and the last one is seasons. So let's begin with this chapter. Water. Water क्या होता है? There is water in the rivers, lakes, ponds, seas and oceans. Water कहाँ पे होता है? Rivers में होता है, lakes में होता है, ponds में होता है, seas में होता है, oceans में होता है. ये water में मिलता कहाँ से है? We get this water from the rain. The rain is the main source of water. Water also falls from the sky in the form of rain. Water कहाँ से fall करता है? It falls from the sky in the form of rain. All these are liquid forms of water. ये सब क्या है हमारे liquid forms of water की? We already know that when water is kept in a freezer, it turns into ice. अब हमको पता है जब हम water को अपने freezer में रखते हैं वो किस में convert हो जाता है? Solid form में आ जाता है in ice. This process is called freezing. इस process को क्या कहते हैं? We call this process as a freezing. Ice is the solid form of water. Ice क्या है? हमारे water की solid form है. Steam and water vapor are gaseous form of water. Steam हो गया, water vapor हो गया, ये क्या है हमारा? Gaseous form है water की. Now let's talk about water cycle. Water cycle क्या होता है? We find water everywhere. हमें water हर जगह मिलता है. Oceans, river, lakes, ponds, etc. हमें water हर जगह मिलता है. This water changes into water vapor by the heat of the sun. ये water किस में change हो जाता है? Water vapor में change हो जाता है किस वजह से? Heat of the sun की वजह से. Sun heat करता है, then it changes into water vapor. वो steam out हो जाता है सारा water. The water goes high up in the air, which is cool. Water कहाँ से हो जाता है? High up in the air और वो cool हो जाता है. The water vapor on cooling changes into small droplets of water. जब water vapor cool हो जाता है तो किस में change हो जाता है? Small droplets of water में change हो जाता है. These small droplets of water collects and clouds are formed. जो ये small droplets होती है हमारे water की, ये collect हो जाती है और क्या बन जाते हैं? Small clouds बन जाते हैं. In cooler air, these clouds get further cooled. कूल एयर चलती है तो ये जो वो होते हैं हमारे क्लाउड्स होते हैं बहुत ज्यादा कूल हो जाते हैं. कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड दे बिकम बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर. कंडेंसेशन हो जाती है तो ये जो वाटर की जो स्मॉल ड्रॉप्स थी क्या हो जाती है? हमारी बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. विच फॉल्स डाउन एज रेन. वो किसकी फॉर्म में फॉल डाउन करती है? रेन की फॉर्म में करती है. दिस रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू रिवर, लेक्स एंड ओशियंस. जो ये वाटर होता है कहाँ फ्लो बैक करता है? रिवर्स में, लेक्स में और ओशियंस में फ्लो करता है. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ गोज टू द एयर. जो ये मूवमेंट ऑफ वाटर की कहाँ चली जाती है? हमारे एयर में चली जाती है. देन बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल. फिर से वो सारा वाटर क्लाउड्स बर्स्ट हो जाता है, फिर से रेन हो जाती है, सारा वाटर हमारे लैंड पे ही आ जाता है. ये प्रोसेस चलता रहता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. वी विल स्टडी अबाउट वाटर पॉल्यूशन. यू नो आजकल बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होने लगा. पीपल यूज्ड टू थ्रो देयर गार्बेज इन द रिवर्स, इन द ओशियंस, इन द सीज, एंड पीपल थ्रोज वेस्ट वाटर, रनिंग वाटर, ड्रेन वाटर आपका सारा रिवर्स में जाता है.
इससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है. द वाटर वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम द रिवर नियर अस. वाटर जो हम पीते हैं वो कहाँ से आता है, रिवर से आता है जो हमारे आसपास होती है. Nowadays, many of our rivers are turning dirty because of what we humans do. आजकल जो हमारी रिवर्स है वो गंदी होती जा रही है. किसकी वजह से? किसकी वजह से होती है? जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है वो सारा रिवर्स में जा रहा है. वॉशिंग क्लोथ्स हो रहा है रिवर्स में. इससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूट होता है. We wash our clothes in the rivers, we bath in the rivers and we throw garbage into the rivers. हम क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स को वॉश करते हैं रिवर्स में, बात करते हैं रिवर्स में, और हम अपना गार्बेज भी कहाँ थ्रो करते हैं, रिवर्स में. एंड ऑल्सो डंप हार्मफुल ड्रिंकिंग्स, और हम वहाँ हार्मफुल ड्रिंकिंग्स भी डाल देते हैं. दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, जब हम पी लेते हैं इस पॉल्यूटेड वाटर को, वी कैन गेट डिजीजेस लाइक क्लोरिया, जॉइंडिस एंड टाइफाइड. जब हम पॉल्यूटेड वाटर को पी लेते हैं, व्हेन वी ड्रिंक दैट वाटर, हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती है, दैट इज कॉलरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड. मेनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स किसकी वजह से मर जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन की वजह से. It is our duty as citizens to prevent water pollution, as it will cause great harm to plants, animals and human beings. ये एज अ सिटीजन हमारी ये ड्यूटी होती है, हमें अपने रिवर सोर्सेस को, वाटर सोर्सेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो हमें हार्मफुल डिजीजेस हो सकती हैं और हमें प्रॉपर क्लीन वाटर, प्योर वाटर नहीं मिलेगा ड्रिंकिंग के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदर. वेदर क्या होता है? द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द वेदर. जो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है प्लेस की एट अ गिवन टाइम, एक टाइम पे, दैट इज वेदर. द वेदर चेंजेस वेरी क्विकली. वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. इट मे बी हॉट इन द डे एंड कूल एट द नाइट. दिन में हॉट हो सकता है, नाइट में कूल होता है. इट मे बी स्टॉर्मी इन द इवनिंग एंड काम एट द डॉन. वो स्टॉर्मी हो सकता है इवनिंग में और काम हो सकता है डॉन में. इन अ मंथ देयर मे बी सम डेज दैट आर कूलर और वार्मर देन द रेस्ट. मंथ में क्या होता है, कुछ डेज कूलर होते हैं और कुछ डेज वार्मर होते हैं. इट मे बी क्लाउडी वन डे एंड सनी अनदर डे. एक दिन क्लाउडी हो सकता है कि अभी रेन हो रही है और तुरंत सनी भी हो सकता है नेक्स्ट डे. सो द वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो एक वेदर होता है एक प्लेस का, वो चेंज होता रहता है कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेदर को? द कंडीशन फॉर और फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर आर एज फॉलोज. द फर्स्ट वन इज द सन. सन कैसे करता है हमारे वेदर को इफेक्ट? द सन राइज इन द मॉर्निंग. सन कब राइज करता है? मॉर्निंग में करता है. एट नून इट इज हॉट. नून के टाइम तक क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है. द सन सेट्स इन द इवनिंग. जब इवनिंग में सनसेट हो जाता है, कूल हो जाता है एरिया हमारा. इट इज कूल एंड प्लेजेंट. वो क्या होता है, कूल होता है, प्लेजेंट होता है. नाइट्स आर कूलर देन डेज. जो हमारी नाइट्स होती हैं कूलर होती है डेज के अकॉर्डिंग. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल डे द वेदर चेंजेस सेवरल टाइम. एक दिन में वेदर बहुत बार चेंज हो सकता है. द सन कॉजेज दीज चेंजेस. सन क्या करता है, चेंजेस कॉज करता है वेदर की. नेक्स्ट इज विंड. विंड से भी हमारा वेदर चेंज हो जाता है. सॉफ्ट एंड जेंटल विंड्स आर इज कॉल्ड ब्रीज. जो सॉफ्ट और जेंटल विंड्स होती है वो क्या होती है, हमारी ब्रीज होती है. इट मेक्स द वेदर प्लेजेंट. वो हमारे वेदर को प्लेजेंट बनाती है. When wind blows at a very high speed, it is called a storm. जब wind blow करती है बहुत ज्यादा high speed पे, तो हम उसको क्या कहते हैं? We call them as a storm. A storm can cause loss of lives and prosperity. हमारी लाइफ और prosperity में मतलब बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है storm से. हाउसेज, हट्स, जो विलेजेस होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को सफर करना पड़ता है. Now let's talk about clouds. Clouds, on certain days, clouds block the rays of the sun. आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्लाउडी होता है तो उस दिन सन नहीं दिखता हमें. तो क्या होता है, सर्टेन डेज में क्या होता है, क्लाउड्स क्या इफेक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है रेस को सन की. Since the sun rays cannot reach us, it is not very hot. जैसे कि सन रेज हम तक पहुंचती थी हैं तो वो दिन ज्यादा हॉट नहीं होता. Cloudy nights are
warmer. जो cloudy nights होती है वो क्या होती है? Warmer होती है. This is because the clouds do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere above. इससे क्या होता है? जो clouds होते हैं they do not allow the heat, वो heat को allow नहीं करते of the earth to escape from the atmospheric above, जिससे वो atmospheric above से escape ना कर पाए हमारी cloud से heats. Some clouds bring rain, कुछ clouds क्या लाते हैं? Rain लाते हैं. Now precipitation. What do you mean by precipitation? One of the condition that affects the weather is precipitation. जो एक condition है जो सबसे ज़्यादा affect करती है हमारे weather को, that is precipitation. It is the water that falls from the sky onto the earth. वो क्या होता है? Water होता है जो sky से fall करता है हमारे earth पे. Rain, snow and hail are the types of precipitation. जो rain होती है, snow होती है और hail होती है, ये क्या है? They are the forms, they are the types of precipitation. Now, grow with knowledge point. Have you ever heard someone asking what the temperature of a day is? कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना है कि आज का temperature क्या है डे का? Temperature can be measured with an instrument called a thermometer. हम टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर कर सकते हैं, दैट इज थर्मोमीटर. द हॉटर द टेम्परेचर द हायर द रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर. जितना ही हॉटर होगा टेम्परेचर, जो हायर रीडिंग्स होंगी टेम्परेचर थर्मोमीटर की हायर होती चली जाएंगी. वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ. हाउ वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ? वेदर कैसे इफेक्ट करता है हमारी लाइफ पे? वेदर कैन अफेक्ट द टाइप्स ऑफ फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वियर. वेदर अफेक्ट करता है हमारे उस फूड पे जो हम खाते हैं, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उन पे. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वुलन क्लोथ्स इन विंटर. हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में और वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? विंटर्स में. एंड यूज अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स इन रेनी सीजन. हम अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स यूज करते हैं रेनी सीजन में. Our summer foods and drinks keep us cool, while in winters we eat food to keep ourselves warmer and drink hot beverages. जो समर फूड क्या करता है हमारे ड्रिंक्स को हमें, और ड्रिंक्स समर फूड क्या होती है हमारी? ड्रिंक्स होती है कई बार, तो ड्रिंक्स जो होती है हमें क्या करती है? हमें कूल रखती है. एंड व्हाइल इन विंटर्स वी ईट हॉट फूड, वी ईट द फूड टू कीप आवरसेल्फ वार्म, जिससे हम वार्म रहे. एंड ड्रिंक हॉट बेवरेजेस. हम हॉट बेवरेजेस को ड्रिंक करते हैं. The type of houses we live in depend on the weather of the place. जो भी हम टाइप्स के हाउसेस में रहते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? उस वेदर पे, जो प्लेस के. In the place with heavy rainfall or snowfall, people build their house with sloping roofs. जो places होते हैं heavy rainfall के और snowfall के, people क्या करते हैं? They build their houses with sloping roofs, जिससे वहाँ पे snow और rain रुके ना, it slopes down easily. Grow with knowledge point. Mawsiram is a town in the state of Meghalaya, gets the highest rainfall in the world. मौसिरन क्या है? हमारा एक टाउन है मेघालय में, वहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में. नाउ नेक्स्ट पेज, वेदर फोरकास्टिंग. व्हाट डू यू मीन बाय वेदर फोरकास्टिंग? हैव यू एवर सीन द न्यूज? क्या आपने कभी न्यूज देखी है? उसमें देखना होगा कि जो हमारा न्यूज रीडर होता है वो हमें क्या बताता है. इट समटाइम्स टोल्ड अस अबाउट द वेदर फोरकास्टिंग, कि आने वाले टाइम में हमारा वेदर कैसे होने वाला है. दैट इज नोन एज वेदर फोरकास्टिंग. Many of our activities are affected by the change in weather. हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज से अफेक्ट होती है वेदर में चेंजेस पे, कि हमें कहीं जाना है, then starts raining, storm आ जाता है कभी कभी. Therefore, people have always tried to predict or forecast the weather conditions. तो लोगों ने क्या करा? ट्राई करा predict और forecast करना weather conditions को. It help us if we can know what the weather will be the next day. ये हमें किसमें हेल्प करता है? अगर हमें पता चल जाएगा कि कल क्या वेदर है, क्या वेदर कंडीशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटीज को प्लान करेंगे. और ऑन अ फ्यूचर डेट, इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग. जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें वेदर की इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीजन्स. व्हाट डू यू मीन बाय सीजन्स? वेदर चेंजेस इन साइकिल्स. वेदर कब चेंज होता है? साइकिल्स में चेंज होता है. साइकिल्स ऑफ वेदर चेंजेस आर कॉल्ड सीजन्स. जो साइकिल होती है वेदर चेंजेस की, दैट इज कॉल्ड सीजन्स. द इम्पोर्टेंट सीजन्स आर विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड ऑटम.
हमारे important seasons क्या है? Winter आता है, then spring आता है, then summer, then rainy, then autumn season. Some seasons are hot. कुछ seasons हमारे hot हैं. Some are cold. कुछ cold है. Some seasons are wet. Wet है हमारे rainy season. Some seasons are dry. कुछ seasons हमारे dry हैं. Winter is the cold season. Winter क्या हमारा cold season है. Summer is the hot season. Summer हमारा hot season है. Winter and summer are dry seasons. Winter और summer क्या हमारे dry season है. Spring is the season between winter and summer. Spring क्या है हमारा season है winter और summer का. And the rainy season is the wet season. The air begins to warm the spring. जो air होता है वो warm करने लग जाते हैं spring को. Autumn is the season between summer and winter. Autumn कब आता है हमारे summers और winter के बीच में आता है. The air begins to cool in the autumn. Autumn में cool होने लगती है हमारे air. In most part of India, there is rainy season after summer. बहुत सारे parts में हमारे इंडिया के rainy season summer के बाद आता है. The weather becomes hot and humid during this season. इस time पे हमारा weather hot और humid हो जाता है. Now, here are some learning points of this chapter. First point, weather exists in three forms, solid, liquid and gas. First point, water exists in three forms, solid, liquid and gas. Water three forms में exist करता है, that is solid, liquid and gas. These are the states of matter. The movement of water from the earth to the air, then back to the earth in the form of cycle is called water cycle. जो movement होती है water की from the earth to the air, if earth से air में, then back to the earth, वापस से earth पे in the form of to the earth in the form of a cycle. एक cycle के form में कि पहले earth से जाएगा air में, then air से earth पे आएगा, इसको क्या कहते हैं? Water cycle कहते हैं. Next point, by drinking and polluted water, we can get diseases like cholera, jaundice and typhoid. अगर हम polluted water को drink करेंगे, we will get the diseases like cholera. हमें cholera हो सकता है, jaundice हो सकता है, typhoid हो सकता है. Next point, the atmospheric condition of a place at a given time is called the weather. जो एक atmospheric condition होती है एक place के एक given time पे, that is called the weather. Next point, the weather of a place keeps changing from time to time. जो एक weather का weather होता है place का, वो change होता रहता है. It changes very quickly from time to time. Next, information about weather in advance is called weather forecasting. जो आपको information मिल जाती है weather की advance में, that is called weather forecasting. Next, cycles of weather changes are called seasons. जो cycle होते हैं weather के changes में, that is called seasons. So, there are 5 seasons: winter, spring, autumn, summer, rainy. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.